Hello everyone, welcome back to my channel Gandhiala GS classes. As you guys know, मध्य प्रदेश जनरल स्टडीज़ आपके सारे एग्ज़ाम्स में काम आता है. एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, MPPSC हो गया, MPSI हो गया, पटवारी का आपका एग्ज़ाम हो गया, या फिर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो MP स्पेसिफ़िक होते हैं, स्टेट स्पेसिफ़िक होते हैं, उसमें आपका मध्य प्रदेश जनरल स्टडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो इन दिस वीडियोस, इन दिस क्लासेस वी विल लर्न अबाउट MP's introduction, MP's geography, MP's polity and its history also. So let's start these videos. And first of all, I am here. आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे. What we are going to study. Okay, so we are going to study MP. In MP, what we are going to study? First of all, we are going to study introduction. In introduction, we will know that when MP is reorganized and when it get independence, and how many state boundaries are there which uh, touch MP, and anything, everything we will learn here. So इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे इसका जियोग्राफी. आफ्टर इंट्रोडक्शन we will see geography of MP. In geography of MP, we will see its divisions, कि किस किस divisions से हमारा MP divided है, just like mountains, rivers, plains, plateaus. Then we will see how many parts of mountains and how many types of mountains are there, how many plateaus are there in MP, and how many rivers flows in MP and their projects. Everything we will learn in geography. And in geography we will also see waterfalls, झीले, तालाब, lakes, soils, agriculture, animal husbandry. Everything we will cover here in geography of MP. And then after geography we will see economy. In economy, what we will see? We will see transports. In transport we will see road, railway and air. Then in transport, I mean in economy, we will see electricity projects, minerals, industries and etc etc, in which economy is covered of MP. And then after economy we will cover polity. We will cover polity of MP. In polity of MP, that legislative assembly, and then Rajya Sabha, Lok Sabha, Panchayati Raj system, police system of MP. Everything we will cover in polity of MP. And then after polity, we will discuss about commissions of MP. As you know that there is so many commissions of India, and there is specific commissions for MP also. And then in this commission of MPs we will discuss all about SC/ST and human right commissions, women commissions, children commission, every commissions of state and all over India which is necessary, we will discuss in this part of MP, which is called commission. And then after commission we will discuss about art and culture. Art and culture of MP. If there is necessary topics of important topics of all over India, then we will see it, but we will only discuss about MP, because in some days you guys were seeing that एग्ज़ाम्स लाइक पटवारी, SI एंड जो छोटे मोटे एग्ज़ाम्स होते हैं ना आपके, वो सब MP के आने वाले हैं. तो इन इट यू हैव टू बी फोकस ऑन MP स्पेशली. सो इन दीज वीडियोज़ वी विल कवर अबाउट ऑल पोर्शंस ऑफ MP and in art and culture, which is important also, just like plays and sangraal museums and all, and festivals, arts, everything we will cover here, which is all about MP. And then after art and culture we will discuss about history of MP. History of
MP. And after history of MP, in history of MP, we will discuss ancient, medieval, and modern, how MP plays a role in our freedom struggle, and in 1857's revolt, is there any role of MP or not? So we will discuss about it in all over history part of MP. And after history part, we will discuss miscellaneous parts, just like tourism, state, and the communication department, what is first in MP, and present status of MP, and health ministry, and etc etc we will discuss in miscellaneous. We will discuss it in miscellaneous. So motive of this video is to learn you all about MP, every part which is important as perspective of every exams of MP और स्टेट लेवल एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं हम इसमें पूरा कवर करेंगे. जैसे कि आज हम MP का इंट्रोडक्शन पूरा यहाँ पे कवर करेंगे. विल डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ MP. सो व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ MP? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी all know about MP is divided in 5 parts. Today is our first class and first class of MP, and here we are going to discuss introduction of MP. Here, introduction of MP. Now, introduction of MP आपका फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट हो जाता है. जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है हमारे MP का. सो MP का अगर आप जोग्राफी, मैं आपको पहले पार्ट्स बता देती हूँ. देयर आर 5 पार्ट्स इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट MP's इंट्रोडक्शन. सो 5 पार्ट्स, देयर इज 5 पार्ट्स in which we are going to discuss about introduction of MP, and the first part is geographical condition. First part is geographical condition. Then second part is administrative condition. Administrative condition. And the third one is political system. Political system of MP. And the fourth one is judicial system. Judicial system. And the fifth and the last one is economical condition. Economical condition. So here, geographical, administrative, political, judicial, and economic. In these 5 perspective, you guys will know about introduction of MP. Here, if you see geographically, what is geographically? First of all, स्टेट का जो हमारा आप कह सकते हैं कि गठन, स्टैब्लिशमेंट जो हुआ था, स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इज 1st November 1956. Firstly, the state of MP is established, and after 1956 there is 2 and 3 times where reorganization of MP is done. The first reorganization is done in 1st November 2000. 1st November 2000, where छत्तीसगढ़ आपका पूरा MP से अलग हो गया था. ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था. तब हमारा 2000 में इसका रीऑर्गेनाइजेशन पहली बार हुआ था. स्टैब्लिशमेंट आपका कब हुआ था? स्टैब्लिशमेंट आपका 1st November 1956 में हुआ था, और रीऑर्गेनाइजेशन 2000 में हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ को MP से अलग कर दिया गया था. देन 1st November 2000 के बाद
धीरे धीरे जो हमारे स्टेट के जितने भी अंदर पार्टीशंस थे, स्टेट के अंदर जो डिविजन्स होते हैं और डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उसमें स्लोली स्लोली करके 2 3 4 5 बार आपका डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया गया है। तो वो हम धीरे धीरे देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न दैट अवर establishment of MP is done on 1st November 1956. What we say the birth of MP also, which is done in 1956 1st November. And then little introduction. Then after introduction class we will discuss deeply about and briefly about MP in every chapters and every videos and lessons. So first of all we will discuss about capitals of MP. In capitals of MP you will see administrative capital is Bhopal. Administrative capital is Bhopal. And then cultural capital is Jabalpur. Cultural capital is Jabalpur. And then sports and economic capital, which we said sports and economic capital of MP is Indore. And then electrical capital, electricity capital is Singrauli. And music capital is Meher. And summer capital is everyone know Pachmari. Here is some capitals by which our MP is known. First of all, administrative capital is Bhopal, and then our art and culture and what we said cultural capital is Jabalpur, and sports and economic capital is Indore, and electricity capital is Singrauli, and music capital is Meher, and summer capital is Pachmari. It is capitals of MP. As you know, we will discuss little bit about map of MP. Here, this is map of MP. Here you see that MP is touched by 5 states. Here you see that MP हमारा 5 states से टच करता है. फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ राजस्थान, जो कि आपके नॉर्थ वेस्ट साइड में आता है. देन सेकेंड आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, जो आपके नॉर्थ ईस्ट में आता है. फिर अगर आप नॉर्थ साउथ की बात साउथ ईस्ट की बात करें तो साउथ ईस्ट में आपका आता है छत्तीसगढ़, एंड साउथ में आपका महाराष्ट्र आ जाता है. एंड देन यू सी हियर आपका वेस्ट में आ जाता है गुजरात. हियर सो ये आपके कुछ स्टेट्स हैं जो एमपी को टच करते हैं. एमपी में अगर आपको पता हो कि टोटल डिस्ट्रिक्ट हमारी 52 है, 52 districts are there in our MP, and divisions of MP is 10. It is normal GK, general knowledge, and we will say introduction of MP. Here, which boundaries is touching Rajasthan and how many districts is touching Chhattisgarh of MP.
ये सब हम विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास इन आवर chapters, just like in which we will discuss about the reorganization and organization and establishment of MP in detail briefly. अभी हमें बस ये देखना है कि हमारा MP में हमारा 5 स्टेट्स यहाँ पे टच होता है और इसमें हमारे टोटल डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, इनके बारे में डिटेल में हम अपने आगे जो चैप्टर्स आता जाएगा उनमें देखेंगे. अभी हमें सिर्फ नॉर्मल डिस्कशन देखना है. सो हियर वी डिस्कस्ड, यहाँ पे हमने आपका एमपी के कैपिटल्स के बारे में देख लिया. एमपी में आपके कितने स्टेट्स हैं वो हमने देख लिया. नाउ वी आर सीइंग कि हम आपके एमपी को किस किस नाम से बुलाते हैं. सो नेम्स ऑफ एमपी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॉल इट सोया स्टेट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॉल इट सोया स्टेट. हार्ट ऑफ एमपी, हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है एमपी को. देन डायमंड स्टेट, डायमंड स्टेट. हम यहाँ पे अभी इनके नाम के बारे में जान रहे हैं और हम इनके रीजंस भी देखेंगे कि क्यों इसे सोया स्टेट कहा जाता है, डायमंड स्टेट कहा जाता है, वनों का राज्य फॉरेस्ट स्टेट कहा जाता है, फॉरेस्ट स्टेट कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है इसे. आप इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं. ये हमारे कुछ कुछ नाम हैं. दीज आर सम नेम्स बाय विच वी कॉल एमपी. These are other names. We call Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is politically, but other names of Madhya Pradesh is Soya State, Hearth of MP, Diamond State, Forest State, Tiger State, तेंदुपत्ता, नदियों का मायका. इन सब नामों से भी हम एमपी को डिनोट करते हैं. अब ये तो हमारा हो गया इसके नाम्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइंस. साइंस मीन्स as we know that India is our national flag. So there is some signs and symbols which denoted by states, and here is some symbols and signs of MP also. So state animal of MP is, first of all we will see state animal of MP. राजकीय पशु जिसे हम कहते हैं, state animal of MP. So state animal of MP is रूवर्स दौड़े, हेनडियर, जिसको हम बारहसिंगा भी बोलते हैं, जिसको हम बारहसिंगा भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेनडियर. व्हाट वी कॉल इट, रेनडियर. रेनडियर इज स्टेट एनिमल ऑफ एमपी. इन हिंदी वी कॉल इट बारहसिंगा. और इसमें अगर आप इसका कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप देखें, 1981 में, इन 1981 इसको एमपी का स्टेट एनिमल बनाया जा चुका था. इन 2017 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इसमें इनका जो आप स्टैब्लिशमेंट बोल सकते हैं उनको किया गया था. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़, ये आपका जो रेनडियर हैं ये आपको सबसे ज़्यादा मंडला और बालाघाट के उद्यानों में, नेशनल पार्क्स जो होते हैं उसमें आपको ये मिलेंगे मैक्सिमम से. वैसे तो ये पूरे एमपी में आपको कहीं ना कहीं हो जाएगा, बट जो इनका बहुत ज़्यादा काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो आपको मंडला बालाघाट साइड राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स में आपको मिलेंगे. कहाँ कहाँ, मंडला एंड बालाघाट. मंडला, बालाघाट नेशनल पार्क में आपको ये मिल जाएंगे. देन नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेकेंड वन इफ यू विल टॉक, राष्ट्रीय पुष्प, स्टेट फ्लावर. स्टेट फ्लावर ऑफ एमपी इज लिली. सो ये जो लिली है ये हमारा एमपी का स्टेट फ्लावर है एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज लीलियम कैंडियम. लीलियम कैंडियम. ये आपके पूरे मध्य प्रदेश में आपको मिल जाएगा.
आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा इन रेनी सीजन्स वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, ये वाइट लिली, आई नो कि आप सभी लोगों ने इसे देखा होगा, वाइट लिली होते हैं। इट स्मेल्स नाइस ऑल्सो, ये बहुत अच्छी खुशबू भी देते हैं। सो ये आपका एमपी का स्टेट फ्लावर है। एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड अबाउट स्टेट बर्ड। स्टेट बर्ड, एमपी के स्टेट बर्ड का नाम हमारा पैराडाइज फ्लाई कैचर है। पैराडाइज फ्लाई कैचर, इसे दूधराज भी कहा जाता है और एमपी के लोकल इसको शाह बुलबुल भी कहते हैं। इसका अगर आप साइंटिफिक नाम देखें तो टेप्सफोन पैराडिसिस इसका नाम है। इसका साइंटिफिक नेम अगर आप देखें तो ये है टेप्सीफोन पैराडिसी पैराडिसी। इसको भी 1981 में एमपी का स्टेट बर्ड घोषित कर दिया गया था। मैक्सिममली अगर आप देखें तो ये वेस्ट एमपी में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये आपके वेस्ट एमपी, आपका एग्जांपल अगर देखा जाए तो सरदारपुर सेंचुरी धार में जो है उसमें आपको मिलेंगे। एंड सेकेंड वन इज़ सैलाना सेंचुरी एक है रतलाम में, वहाँ पे आपको ये मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे। आफ्टर स्टेट बर्ड वी विल डिस्कस अबाउट स्टेट फिश। वी ऑल नो अबाउट महाशीर। महाशीर आप अगर एमपी में कभी भी आए होंगे या विज़िट किया होगा तो ये जो महाशीर मछली है, ये जो फ़िश है, ये आपको हर जगह मिल जाएगी। महाशीर को इनके लोकल लैंग्वेज में टाइगर ऑफ फिश भी कहा जाता है और इनकी जो फैमिली होती है ये टोरटोर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और महाशीर का साइंटिफिक नाम है टोर पिटोटोरा। टोर पुटिटोरा, ये आपका साइंटिफिक नेम है आपका महाशीर का, जो कि एमपी की स्टेट फिश है। ये आपके 2021 में इसको एमपी का स्टेट फिश घोषित किया गया था और ये आपको मैक्सिमम नर्मदा रिवर, खरगोन एंड खंडवा साइड पे आपको बहुत मिलेंगे। मैक्सिमम अगर आप देखें तो ये जो हमारी महाशीर फिश है ये आपको नर्मदा साइड, खरगोन और खंडवा साइड पे आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में या फिर नंबर में आपको मिलेंगी। देन नेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट ट्री, स्टेट ट्री की अगर हम बात करें तो एमपी का स्टेट ट्री है हमारा बरगद, जिसे हम बेनियन ट्री भी बोलते हैं। बरगद का पेड़ अगर आप देखें तो एमपी में आपको मैक्सिमम जगह मिल जाएगा। इसको भी आपका 1981 में एमपी का स्टेट ट्री घोषित किया गया था और ये आपकी फैमिली मोरासेकस से बिलोंग करता है एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज़ फ्यूकस बेंगालेंसिस। एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट फ्रूट, as we all know the king of fruits is mango and state fruit of MP is mango। ये आपको ऑल ओवर एमपी में मिल जाएगा कहीं पे भी अगर आप देखें। और जो आपकी बहुत मीठी वाली जो आप कह सकते हैं मैंगो का जो प्रजाति होता है वो एमपी में ही मिलता है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्पोर्ट ऑफ एमपी। स्टेट स्पोर्ट जो है, राजकीय खेल जो है आपका वो मलखम है। मलखम अगर आपने देखा होगा, मलखम आपका एमपी का स्टेट स्पोर्ट है और ये 2013 में आपका इसको घोषित किया गया था। एंड देन राजकीय फसल जो आप बोल सकते हैं स्टेट
एग्रीकल्चर। सो ये आपका आ जाता है सोयाबीन। सोयाबीन को हमारे मध्य प्रदेश के राजकीय फसल के उस पे बोला गया है। और सोयाबीन आपको मैक्सिममली मालवा रीजन में मिलेगी। मालवा रीजन में आपको सोयाबीन की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको मिल सकती है। एंड देन इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टेट नाट्य विच वी सेड थिएटर, स्टेट थिएटर की अगर हम बात करें तो ये है हमारा मार्च। ये मैक्सिमली आपके मालवा रीजन में प्ले होता है, परफॉर्म किया जाता है। एंड ये वहाँ का आप कह सकते हैं कि बहुत फेमस और कल्चरली भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है आपका मार्च। फिर आप नृत्य डांस की बात करें, स्टेट डांस की अगर आप बात करें तो इसमें आपका राई डांस जो है वो स्टेट डांस आ जाता है। और ये जो राई डांस है ये आपका बुंदेलखंड एरिया में, बुंदेलखंड रीजन में ज़्यादा आपको फेमस मिलेगा। और इनके जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रमुख कलाकार जिन्हें हम आर्टिस्ट बोल सकते हैं, वेरी फेमस आर्टिस्ट ऑफ दिस राई डांस इज़ ज्ञानेश्वरी फ्रॉम कटनी। ज्ञानेश्वरी फ्रॉम कटनी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे स्टेट के जो भी इम्पोर्टेंट हमने देखा, इम्पोर्टेंट हमारे स्टेट के एनिमल्स, फ्लावर्स, एवरीथिंग। अब हम वेरी 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 इम्पोर्टेंट आ जाते हैं स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल जिसको अगर आप देखें, सो हमारा जो एमपी का स्टेट सिंबल है, द स्टेट सिंबल ऑफ एमपी इज़, इट इज़ सर्कुलर। इसके सर्कुलर पाथ के सर्कमफ्रेंस में आपको कुछ इस पैटर्न में देखने को मिल जाएगा थोड़ा डिज़ाइन। फिर इसके एक और सर्कमफ्रेंस के अंदर यू विल सी वन मोर लाइन एंड देन अगेन वन सर्कल। इन दिस सर्कल आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। हियर आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश शासन। और इधर नीचे साइड पे आपका लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। एंड these both sides, here and here we will get the फसल ऑफ दैट राइस। राइस होता है ना, इस साइड आपका राइस है, इस साइड आपका राइस है, और राइट साइड पे आपका वीट। इनकी फसल का फ़ोटो मिल जाएगा आपको। लेफ्ट साइड पे राइस एंड राइट साइड पे आपको वीट का फ़ोटो मिल जाएगा। देन इफ़ यू टॉक अबाउट सेंटर, सेंटर में आपको जो स्टेट ट्री है हमारा बनियाइन ट्री, बरगद का पेड़, you will see banyan tree in which the symbol of lion which we see in coins, the symbol of lion. ये 2-3 things are there जो आपके स्टेट सिंबल में डिनोटेड है। आपका सर्कमफ्रेंसेस में स्तूपास, 24 स्तूपास जो अशोक स्तूपास को डिनोट करते हैं। एंड देन before that you will see Madhya Pradesh Shasan written on top, and in south and bottom side you will see the Satyamev Jayate, and in left and right you will see the symbol of rice and wheat, and in between you will see banyan tree and the symbol of lion embodied there. और so ये हमारा MP का स्टेट सिंबल है जो
आपके एमपी को डिनोट करता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारा सारा हो चुका था। फिर आप एमपी के सॉन्ग की बात करते हैं। अगर एमपी सॉन्ग ऑफ एमपी लाइक नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल सॉन्ग जो होता है ना हमारा, उसी टाइप से एमपी का भी एक सॉन्ग है, एंड दैट सॉन्ग इज़ सुख का दाता सबका साथी। व्हाट वाज दैट सॉन्ग इज़? इट इज़ सुख का दाता सबका साथी। इस सॉन्ग को 26 जुलाई 2011 में आपका एमपी का सॉन्ग बना दिया गया था, और इसके रचनाकारक जो हैं, इस सॉन्ग को लिखा है महेश श्रीवास्तव ने। किसने लिखा है इस सॉन्ग को? महेश श्रीवास्तव। सो हियर इज़ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट एमपी। हमने देखा कि हमारे एमपी का मैप कैसा है, हमने उनके स्टेट्स के बारे में देखा, और हमने ये भी देखा कि कितने स्टेट्स हैं जो बाउंड्री टच करते हैं एमपी का। अगर हम आपका ज्योग्राफिकली थोड़ा सा देखें, लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड के अकॉर्डिंग हमारा एमपी किस पोजीशन में आता है। सो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग हमारा जो एमपी है वो 26 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ साइड है। 21 डिग्री टू 66 मिनट एंड 26 डिग्री टू 30 मिनट हमारा नॉर्थ है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट ईस्ट। सो इट इज़ 74 डिग्री 9 मिनट टू 82 degree 48 minute east. This is our latitude and longitudinal place of MP which it resides. If we talk about the length and breadth of MP is 605 kilometer from north to south, and 870 kilometer from west to east. It is length and breadth of MP. And if we talk about the time interval between MP, which we said the east and west time interval of MP is 34 minutes. The time interval of MP is 34 minutes. If we talk that वेस्ट स्टेट ऑफ एमपी इज़ अलीराजपुर एंड द ईस्ट वन इज़ सिंगरौली। अगर आप इन दोनों के बीच में ट्रैवल करेंगे, सो इट्स अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ओके, अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अगर आप एमपी में वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करेंगे, सो इट इज़ 34 मिनट। ओके, 34 मिनट डिफरेंस। Here we see all parts of MP. Little introduction, not briefly, but introduction about MP. अगर आप MP का मैप देखें तो एमपी हमारे कर्क रेखा, जो आपकी ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन होती है, वो आपके एमपी से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये हमारे 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी से गुजरती है। अभी 14 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं वो हम अगेन ब्रीफली बाद में डिस्कस करेंगे। और ये आपके छोटे मोटे पॉइंट्स हमने आपका यहाँ पे डिस्कस किया कि हमारे 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 डिवीज़न हैं, और आपका जो फर्स्ट हाई कोर्ट है, अगर आप हाई कोर्ट की बात करें, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो रहा है तो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। हियर इफ़ यू टॉक अबाउट हाई कोर्ट, सो इन 1 नवंबर 1956 जबलपुर, as you guys all know, our high court of MP is in Jabalpur, and before Jabalpur, Nagpur is our high court. Okay, in present high court of MP is Jabalpur, which is established in 1st November 1956, and before Jabalpur, Nagpur is the first high court of MP, and its
architecture is Henry Irwin. If you guys know about Henry Irwin, he is also the architecture of Mountbatten's Hall, Lord Minto Hall, which is in Bhopal also. So, and the sub branches of High Court is in Indore and Gwalior. The sub branches of High Court in MP is Indore. It is Indore and Gwalior. Okay, so here is complete of our introduction of MP, and the last one we will see here some seats which is administrative in administrative field. In administrative field we will see the three part of MP. Three part of MP is, first is legislative assembly, legislative assembly, and the second one is Lok Sabha, and the third one is Rajya Sabha. We will not discuss about what and how many seats before establishment of MP. We will see only present status of MP. So present in according to present status of MP, the Legislative Assembly has 230 seats, in which 47 is for STs and 35 seats is for SCs. And then if we talk about Lok Sabha, so we have 29 seats in present, in which 6 seats for ST and 4 seats for SC. And the present seat number of Rajya Sabha of MP is 11. Okay students, so here हमने जितना भी थोड़ा इंट्रोडक्शन था वो यहाँ पे कवर किया, एंड हम MP का जो भी ब्रीफली डिस्कशन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके MPPSC के एग्ज़ाम से, आपके SI पटवारी और जितने भी MP और स्टेट के एग्ज़ाम्स आते हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे. विद इन 1 month or 15-20 days आई विल ट्राई टू कवर ऑल syllabus of MP, which will help you to crack all exams which you want, in which MP is necessary and important. So thank you so much, and if you guys like it, please share and subscribe my channel. Thank you so much.